welcome student. Today we are going to start the new unit, that is algebra, and it is of 10 marks in board point of view. This is very important, and one of 6 mark question will be from this slot. In matrices there are two slots, one is matrices and other is determinant. So one by one we have to see that what is matrix, what is matrix. So here matrix, the plural of matrix is matrices, algebra of 10 marks, determinant and matrices. There are two slots. First of all, what is the definition of matrix? This is a singular form of matrices. Matrix is singular and matrices is plural. Here a rectangular array. Array means it is an arrangement of numbers. So a rectangular array, that is an arrangement of mn numbers in the form of m horizontals lines called rows and n vertical lines called column is called a matrix of order m by n. Clear? A matrix of order m by n. It is written as m into n in this way. Means what? Matrices is a what? Matrices is a kind of arrangement of numbers. Like if we have 6 numbers, suppose a, b, c, d, e, 1 2 3 4 5 6. So here I written mn numbers. What does it mean? So this 6 can be represented in, suppose 6 by 1, then it is mn, that is 6. 6 means mn, m into n. We can write this as 1 by 6, this is also 6, 2 by 3, this is also 6, 3 by 2, this is also 6. Means we have a number 6 and we have to arrange in horizontals as well as vertical lines. So matrices क्या है? एक तरह का अरेंजमेंट है नंबर्स का, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते हैं, जिसमें m नंबर्स है एक जगह, n नंबर्स है, और m into n means the product of m into n is mn. So जैसे 6 नंबर मेरे पास है a b c d e. अब मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल में लिख सकता हूं. तो हॉरिजॉन्टल में मैं ऐसे लिख रहा हूं a b c d e f, और इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर इंक्लोज किया जाता है. रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कोई यूज करते हैं, कोई स्मॉल लेटर a, स्मॉल ब्रैकेट a b c d e f. तो ये एक तरह का अरेंजमेंट है. इट इज एन अरेंजमेंट. वी हैव नो वैल्यू because it is an arrangement. So here when we arrange in horizontals, this is called row, and the vertical lines 1 2 3 4 5 6 vertical lines. So how many horizontals? 1 horizontals and 6 verticals. So this is the order 1 by 6. Clear? So what is matrix? Matrix is an arrangement of numbers where we have to arrange by taking, suppose, horizontal as well as vertical. Horizontal lines called rows and vertical is called column. So here mn numbers, again you see we having 6 numbers and one option I taken 6 horizontal and 1 by 6, 1 horizontal and 6 vertical. So that is why the order, this is called order. This is order. Order is 1 by 6. Here 6 verticals and 1, this is what, 6 horizontals. 6 horizontals means what? And 1 vertical line like this. This is the vertical. ये vertical हो गया. Horizontals है a b c d e f. The order is 6 by 1. Why? Because this is R1, this is your R2, this is your R3,
this is your R4, this is your R5, and this is your R6. So here we having 6 rows and one vertical line, that is C1 column 1. So 6 rows, 1 column, that is why order is 6 by 1. And other option 2 by 3 means 2 rows and 3 columns, like A, B, how many rows? 2 rows, C, D, E, F. This is a matrix of order 2 by 3. Why? Because it has 2 rows, row 1 and row 2, and column is what? C1, C2, C3. This is the column. So that is why here 6 numbers arranged by taking 2 horizontals as well as 3 verticals, यानी 2 horizontals and 3 verticals के फॉर्म में इसको लिखा गया. Then it is how much? 6. So 6 numbers can be arranged in this way. यानी 6 नंबर को हम लोग इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं. एक और ऑप्शन है 3 by 2, यानी 3 by 2 मीन्स 3 रो और 2 कॉलम. रो मीन्स हॉरिजेंटल्स, लाइक A, B, C, D, E, F. अब यहाँ क्या हो गया? रो 1, रो 2, रो 3, 3 rows, verticals 1, 2, 2 verticals. So 3 by 2. This is also a matrix of order 3 by 2. So if I have 6 numbers, then possible number of ways to arrange by using 6 horizontal as well as 1 vertical, that is 6 by 1, 1 horizontal, 6 vertical, that is 1 by 6, 2 horizontal, 3 vertical, 2 rows, 3 columns, 3 rows, 2 columns. But ultimate we arrange only 6 numbers, but in different form, like rows or column. So it may be here possible orders are what? If we have 6 numbers, so we have 4 different orders. So this is also very important. What is matrix? Matrix is a kind of arrangement of numbers. So suppose we having 5 numbers. So what we do? If we have 5 numbers, then the 5 can be arranged by taking 5 horizontals, 1 verticals, 5 by 1, either 5 by 1 or 1 by 5. But if we have 12 numbers, so what we do? In form of 12 numbers, what are the possible orders? How many ways we can make an arrangement? Here 12 numbers are there. So the m into n, that is mn is here 12. Now 12 by 1, 1 by 12, 3 by 4, 4 by 3, 6 by 1, 6 by 2, or 2 by 6. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 different ways to arrange 12 numbers. So the thing is, what is matrix? So a matrix is an rectangular array. Array means an arrangement of mn numbers. Here I taken mn as 6, and here I taken as mn as 12 numbers in the form m horizontals. The first one is horizontals, that is called row. Verticals, that is called columns. Each called a matrix of order m by n, and this is also written as m into n, but we have to read as m by n. Such an array is enclosed in a bracket. Which bracket? Small bracket as well as square bracket or big bracket. And order is placed here like m by n. M by n. This is the matrix. Clear? The plural of matrix is matrices. The plural of matrix is matrices. Okay, the plural of matrix is matrices. And
usually matrix is, or we can say usually we denote a matrix, okay, of letter, we can say it is a letter of English alphabet, letter of matrix, okay, clear, matrix of letter. Usually we denote a matrix, a letter of English alphabet, clear, by using English alphabet. And one more thing, when if we have suppose nine elements, no, when we use the matrices, inside the matrices, that mn numbers is what? Mn numbers means what? Mn numbers means where we fill the matrices by using mn numbers. This is called elements. So each of mn numbers is called the elements of a matrix. Clear? Now, how we can denote? Notation is important. How to denote a matrix, that I already told. It is by using capital letter of English alphabet. Suppose we have a matrix A. This element is denoted by A11. इसको हम लोग A11 बोलते हैं. A11 means first row, first column. That element which in a place of first row and first column. A12, A13, A14. First row, first column, the element is A11. First row, second column, A12. First row, third column, A13. First row, fourth column, A14. In this way, here we can write 1J. Means what? First row, jth column. In this way, we can write as first row, nth column. Clear? Here A21, second row, first column, A22, second row, second column, second row, third column, second row, fourth column, A2J, A2N, A31, A32, A33, A34, A3J, A3N. Third column, this is third row, nth column. This is column 1, column 2, column 3, column 4, column 5. In this way, column J, column N. This is row R1, R2, R3. In similar way, when we take AI, this is I means what? First row, second row, third row, ith row. First column, AI2, AI3, AI4. This is AIJ, ith row and jth column. In similar way, this is AIN, ith row, nth column. In this way, A is first, second, third rows, ith row and mth row, M1, AM2, AM3, AM4, AMJ, mth row, jth column, AMN. This is what? Mth row, nth column. This is a matrix where we used m horizontals and n verticals. That is why the order is m by n. This is called m by n. यानी ये एक मैट्रिक्स है जिसमें mn नंबर्स को हमने यूज किया है by using m horizontals और
n वर्टिकल फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, इसको पढ़ा जाता है m by n। सो हियर a इज इक्वल टू, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते कैसे है, तो ये जो एलिमेंट है दिस aij एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है ijth एलिमेंट एंड दिस इज व्हाट योर जनरल एलिमेंट। जैसे एपी में था जनरल एलिमेंट, बाइनोमियल में भी था जनरल एलिमेंट, उसी तरह से aij अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमको जनरल एलिमेंट पता होगा तो हम उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अगर हमको जनरल एलिमेंट दे दिया है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होगा तो हम उस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। हाउ वी कैन राइट दैट वी विल सी लेटर। फर्स्ट दिस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो दिस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय a एंड हियर आई रिटन aij, यानी ये एक मैट्रिक्स है जिसका जनरल एलिमेंट aij है। i मतलब रो, तो वेयर ऑर्डर इज व्हाट m by n, इसका ऑर्डर क्या है m by n। तो जो m है, m का वैल्यू यानी i का मतलब क्या हुआ प्रो, तो 1, i मतलब ये है ना i, तो i का मतलब क्या 1 2 3 4, कहां तक जा रहा है 1 से लेकर m तक, 1 2 3 4 m। अगर हम i का वैल्यू 1 से लेकर m तक लिखेंगे और j का वैल्यू 1 2 3 कहां तक जाएगा n टाइम्स, तो ये पूरा मैट्रिसेस के बदले में हम ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्लियर, पहले लिए i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर m और n कहाँ तक जाएगा वो आपको बताया गया है, यानी i का वैल्यू m तक जाएगा, j का वैल्यू n तक जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। इस पर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आता है, उसको भी हम लोग देखते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3, यानी एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर 2 by 3 है, यानी इसमें 2 रो और 3 कॉलम होंगे। तो हम मैट्रिक्स का केवल ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एक मैट्रिक्स यानी एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जिसमें 2 into 3 6 नंबर्स को हमको अरेंज करना है, बट वो 6 नंबर क्या है हमको नहीं मालूम, तो ये 6 नंबर के लिए हमको डिफिनीशंस दिया रहेगा। तो कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3 वेयर aij is given by i plus j, यानी ij एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। ij एलिमेंट जो है जनरल एलिमेंट जिसके बारे में बोले, इसका मतलब i plus j है, यानी aij इक्वल टू i plus j। उसी तरह से अगर हम a11 निकालेंगे तो 1 plus 1 2 हो जाएगा, a12 निकालेंगे तो 1 plus 2 है, यानी वो एलिमेंट 3 हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे बनाना ये थोड़ा सा जानना है। तो ये सेम इसी टाइप से बनेगा, यानी हमको एक मैट्रिक्स बना दिया है aij जिसका जनरल एलिमेंट है और ऑर्डर जो है 2 by 3 है, यानी i का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा 1 से लेकर 2 तक और j का वैल्यू 1 से 3 तक। तो पहले इसको फॉर्म करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहले 6 एलिमेंट्स को फिल करना है, तो a इक्वल टू, ये हो गया a11, ये हो गया a12, ये हो गया 1 3, कितना बोले रो कितना है 2 रो, कॉलम कितना है 3, तो फर्स्ट रो में कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम, ये हो गया a21 a22 a23, यानी 2 रो फर्स्ट रो सेकंड रो 3 कॉलम, यानी यही मैट्रिक्स हमको लिखना है 2 by 3। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा फिलहाल हम लिख दिए, अब सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। तो a11, तो a11 हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको aij पता था, तो aij का मतलब i plus j, तो 11 का मतलब 1 plus 1 यानी 2, हर एलिमेंट को निकाला जा सकता है। a12 का मतलब क्या हुआ 1 plus 2 यानी कि ये 3, a13 यानी कि 1 plus 3 यानी 4, फिर है a21 मतलब 2 plus 1 यानी ये 3, ठीक है। इसके बाद a22 का मतलब हो गया 2 plus 2 यानी ये 4,
and A23 यानी 2 plus 3 यानी हो गया 5. So we have all the elements. Now we can write the matrix A equal to A11, that is 2, 1 3, that is 3, 4, this is 3, this is 4, this is 5, and 2 by 3. So this is a matrix of order 2 by 3. So this is one of the question based on construction. So one more question we have to see. Construct a matrix. Okay, construct a matrix of order 2 by 3. Okay, where Aij is given by, Aij means general element, 1 by 2 mod 5i minus 3j. This is a mod 5a minus 3j. So how we can? So first of all, we have to construct a matrix 2 by 3. Means what? 2 row और 3 columns. तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स मान लेते हैं A ले लिए, जिसमें 2 रो लेना है A11 और 3 कॉलम लेना है 1 2 1 3, A21 A22 A23. हो गया. अब ये हो गया इसका ऑर्डर 1 बाय कितना है 2 by 3. अब सारे एलिमेंट्स को निकालना है. इसको ऑरली भी कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, बट वी कैन सॉल्व इन ऑरल. इट इज ऑफ 1 mark क्वेश्चन. सो 1 1, so half 5 into 1 minus 3 into 1. This is 2 by 2. This is 1. A12 half 5 into 1 minus 3 into 2. This is 5. This is 6. Minus 1 plus 1. Because it is a mod. So 1 by 2 is the answer. A13 1 by 2 mod 5 into 1 minus 3 into 3. 9 minus 5, that is minus 4 by 2 plus 2. A21, this one, A21 half 2, 5 into 2 minus 3 into 1. 10 minus 3, 7 by 2. So A23 1 by 2 mod 5 into 2 minus 3 into A22. 3 into 2. 6. This is 10. This is 6. 4 by 2 means 2. A23. 1 by 2. 5 into 2 minus 3 into 3. That is 10 minus 9. 10 minus 9 half 1 and 1 by 2. So this is the 1 by 2. Now we can write this as 1, 1 by 2, 2. This is 7 by 2, 2 and half. This of order 2 by 3. So again one more question. Construct a matrix of order 3 by 2. Instead of 2 by 3, it is 3 by 2. Where Aij is equal to I plus 2j whole square by 2. I plus 2j whole square by 2 means 3 by 2. You have to construct a matrix of order 3 by 2 means 3 row 2 columns. So A11, A12, A21, A22, A31, A32. Clear? So this is the order 3 by 2. So 1 1. You can solve it direct. 1 1 means this is 1, this is 1. So 2 plus 1, 3. 9 by 2. 3 square, that is 9 by 2. So 1 2. 1, this is 4 plus 1, 5. 25 by 2.
Clear? 2 1, that is 2 1, this is 2 and this is 2. 4 4 4 ja 16 by 2, 8, this is 2 by 2, 2 2 ja 4 plus 2, 4 plus 2 6, 36 by 2, 18, 3 1, 3 and 2, 3 2 5, 25 by 2, and now 3 2, 4 plus 3 7, 49 by 2. The order is 3 by 2. Okay, so these are the questions of based on construction of matrix, and it is of 1 marks only. Now types of matrix. Types of matrix. Types of matrix. Types of matrix. So first type is row matrix. Row matrix. What is row matrix? Sometimes we can say it as row vector. Okay, so row matrix, a matrix having only one row. Okay, a matrix which having only one row is called a matrix called a row matrix. Row matrix or row vector. So basic thing is what? A matrix which having only one row. वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो रहता है, जैसे ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 by 3, 1 रो 3 कॉलम, A B C D E F, ये क्या हो गया 1 रो एंड कॉलम है 1 2 3 4 5 6, सो 1 by 6. इसके बाद इस सारे मैट्रिसेस को हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये 2 सिर्फ होगा तो ये भी 1 by एक्चुअली 1 होगा. इसको हम रो मैट्रिक्स का डिफाइंड ये कहलाता है 1 by 1 एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स. इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. लेकिन रो मैट्रिक्स स्पेशली डिफाइन करना है तो इसमें सिर्फ एक रो होगा. कॉलम से हमको मतलब नहीं है, कॉलम्स का संख्या कितना भी हो सकता है. तो जैसे 2 3 5 1, this is what 1 by 4, so 1 row and 4 column. These all are the examples of row matrix. Second one, column matrix. Column matrix. Column matrix क्या है? A matrix having only one column, यानी वैसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा is called column matrix और column vector. ठीक है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर बोलते हैं. यानी सिर्फ 1 कॉलम होगा. रोज आर एनी नंबर. तो इसमें 2 3 6, ये हो गया 3 by 1, तो 1 कॉलम होना चाहिए. रो कितना भी ना हो सकता है, कॉलम हमेशा कांस्टेंट होगा. इसमें रो कांस्टेंट होगा 1 और कॉलम्स का संख्या कितना भी हो सकता है. यहाँ पर क्या है कि कॉलम कांस्टेंट होगा, रो का संख्या कितना भी हो सकता है. A B C D, this is what 1 by 4, यानी सॉरी 4 by 1, यानी ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 4 रोज एंड 1 कॉलम है. 4 rows and 1 column. This is what column matrix. Clear? After this,
row matrix, column matrix. That matrix is zero matrix. Now the next matrix is zero matrix. What is zero matrix? Zero matrix. Zero matrix. Clear? Zero matrix, sometime it is zero matrix or null matrix, or null matrix. Zero matrix or null matrix. What it is? A matrix whose all the entries, all the elements, a matrix of a matrix where, yeah, which whose all elements clear, a matrix whose all the elements is what? Zero. A matrix each of whose, a matrix each of whose all elements, clear, is what? Zero. Elements is zero. Okay, is called zero matrix. Okay, zero matrix means what? A matrix whose all the elements is what? Zero, and it is denoted by, it is denoted by O. This is not zero, this is O. Clear? Now, यानी उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा जिसके सारे के सारे एंट्री जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे. जैसे एक मैट्रिक्स हम देते हैं जिसका ऑर्डर 2/3 है. 2/3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम है. ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया. तो जिस इस मैट्रिक्स का जो ये ऑर्डर है 2/3, जिसके ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स क्या जीरो है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे. एक मैट्रिक्स ऐसा भी ले सकते हैं, ये क्या है? 3/2. तो ऐसा नहीं सोचना कि ये दोनों सेम हो गया. यहाँ हमने भी 6 एलिमेंट्स को अरेंज किया, यहाँ भी 6 एलिमेंट्स को अरेंज किया. ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, बट इक्वल नहीं है अभी. एक और बात, 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है? ये भी ओ है. इसमें 2 रो है और 4 कॉलम है. यानी हमने यहाँ पर जो मैट्रिसेस लिखा है, जितने भी मैट्रिसेस लिखा है, क्योंकि इसमें सारे एंट्रीज जो जीरो हैं, सारे एलिमेंट्स जीरो है, इसलिए इनको जीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये सब जीरो हो गया यानी ऑल आर इक्वल, ऐसा नहीं है. यहाँ हमने 6 एलिमेंट्स को अरेंज किया, यहाँ भी 6 एलिमेंट्स को अरेंज किया, यहाँ भी 6 एलिमेंट्स मतलब 6 जीरो, यहाँ भी हमने 8 जीरो यानी 8 जीरो को अरेंज किया है. बट हियर इट इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है. ये एक डिफिनीशन हमने बताया कि ये किससे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोला जाता है. व्हाट इज नल मैट्रिक्स एंड व्हाट इज सेम थिंग जीरो मैट्रिक्स? क्या है? ए मैट्रिक्स हुज इच एलिमेंट इज जीरो, then it is zero matrix. After zero matrix, square matrix is there. Square matrix number 4. Square matrix, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्क्वायर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल. ऐसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़े, यहाँ भी उसी तरह का कुछ बात है. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो जाएंगे. जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होगा तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है. यानी मैट्रिक्स हुज इन विच नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. ए मैट्रिक्स हैविंग clear, a matrix having same number, a matrix having the same number of rows and number of columns, number of
कॉलम, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स का संख्या क्या हो, सेम हो जाए, यानी दोनों सेम हो जाए, ठीक है। ईच कॉल्ड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। जैसे ए इक्वल टू ए बी सी डी, मान लेते हैं यहाँ पर 2x2 है, 2 रो और 2 कॉलम। बी एक मैट्रिक्स है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पर क्या है 3x3, 3 रो है और 3 कॉलम है। जितना रो उतना कॉलम, जितना रो उतना कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स व्हेन इट इज सेम, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ये गया स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लियर। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू आई जे m by n is a matrix of order m by n, यानी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है। देन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, ये बात समझना है। डायगोनल एलिमेंट्स, देन ए आई जे, ये जो ए आई जे है, देन ए आई जे इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, क्लियर। इफ यदि i इक्वल टू जे हो जाए, मतलब i और j सेम होना चाहिए, तो ये होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये जो एलिमेंट्स आएगा a11 a22 a33 a44, तो ये सारे कहलाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो a11 a22 a33 a44 etc are called डायगोनल, क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है, कोई दिक्कत? अब द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, किसको बोलेंगे? तो कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम जो सेम रहेगा, जैसे ये जनरल एलिमेंट है ए आई जे, इस ए आई जे एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट्स तभी बोलेंगे जब दोनों सेम हो जाए, आई इज इक्वल टू जे हो जाए, तो इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। और द लाइन वेयर इट लाइज, उस लाइन में जहां ये लाई करेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा वो, यानी कि द लाइन वेयर इट लाइज, जो डायगोनल एलिमेंट जिस लाइन पे लाई करता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर। फिर से सुन लीजिए, द लाइन अलोंग विच द डायगोनल एलिमेंट्स लाइज इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स जिस लाइन में लाई करेगा वो क्या कहलाएगा? डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ये था डायगोनल एलिमेंट्स, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स व्हाट इट इज, क्या है?
डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इन विच, a square matrix in which every non-diagonal elements, every non-diagonal elements is zero. जैसा कि नाम से पहले पता चल रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, जैसे पहले इसको देख ही लेते हैं। जैसे ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है जिसके बारे में हम बता रहे थे कि दिस इज व्हाट A11, दिस इज व्हाट A22, दिस इज व्हाट A33, तो ये जो एलिमेंट्स है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स जहां लाई करता है, ये लाइन डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल। और इस तरफ से जो डायगोनल है इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, OFF, ऑफ डायगोनल। तो इसमें हम पहले डायगोनल मैट्रिक्स को क्लियर कर दें। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज ऑफ ऑर्डर 3/3 है यहाँ पर। इसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तभी बोला जाएगा जब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी ये जितने भी मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब ये मैट्रिक्स का फॉर्म कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, A 0 0 0 E0 0 0 I। तो ये जो मैट्रिक्स आया 3/3 का, ये कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। एंड द एलिमेंट्स वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स लाई, दैट लाइन इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। एंड इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, और इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल, OFF, ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर हुआ। वैसे मैट्रिक्स, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, दैट इज व्हाट? डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको जैसे फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 0 0 0 4 0 0 0 मान लेते हैं 1। तो ये एक मैट्रिक्स है 3/3 का जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0, और डायगोनल एलिमेंट्स है 3 4 5। तो इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ए। इसको लिखा जाता है ऐसे, डायगोनल DIA A। इसका वैल्यू हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 4, 1, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, A = डायगोनल 3 4 5। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिल गया B = डायगोनल A B C, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? B मैट्रिक्स। लिखेंगे कैसे? व्हाट इज द मैट्रिक्स B? A 0 0 0 B 0 0 0 C। ये हो गया 3/3 का, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हुआ। इसमें नॉन डायगोनल्स जितने भी होंगे सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं। उससे पहले स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का 2 मेथड है। देयर आर 2 मेथड टू डिफाइन स्केलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स, यू कैन से ए डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिए, मतलब उसमें 2 बात आ गया, पता चल गया। पहला कि उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होगा, यानी वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। तो ये 2 बात पता चलता है सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोलने से। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलने का मतलब ही होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड
scalar matrix if its diagonal elements is constant। यानी डायगोनल एलिमेंट्स इज कांस्टेंट मतलब जो A11 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है, A33 एलिमेंट है, A44 एलिमेंट अगर है तो वो सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स जैसे ये एक एग्जांपल, ये पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर के बाद नॉन डायगोनल जीरो है, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलने का मतलब इट शुड बी ए स्क्वायर एंड whose non-diagonal elements are zero and the diagonal elements when it is constant, ये constant अगर हो गया जैसे a equal to 3 0 0 0 3 यानी सारे diagonal elements constant होंगे, then this is called scalar matrix। scalar matrix is that matrix, that diagonal matrix whose diagonal elements are constant। so this is scalar matrix। after scalar matrix, unit matrix or we can say identity matrix। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स बोला जाए या आइडेंटिटी, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर से डिफाइन करेंगे, तुमको बोलना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी यानी वन। तो इतना नहीं बोलकर डायरेक्ट हम स्केलर मैट्रिक्स से डिफाइन करें तो स्केलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब कि उसके पहला तो स्क्वायर होगा, दूसरा उसके डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल जीरो होंगे, डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट होगा। दैट कांस्टेंट इफ आई रिप्लेस्ड बाय वन, उसको अगर हम वन से रिप्लेस कर दे, ये 1 1 1 1 कर दे तो क्या बन जाएगा? ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स is called unit matrix if its diagonal elements is 1। अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कर दे? 1 कर दे तो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं आई से। तो आई बोलने का मतलब अब ये पता नहीं चलता है कि कौन सा ऑर्डर है, इसलिए I3 जब लिख देंगे तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। और जब ये I1 रहेगा, ये I2 रहेगा, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1, ये हो गया 2/2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी I2, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये I3 I1 रहेगा तो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। I3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये दिमाग में रखना है, जिस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है उसको In बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? n/n हो जाएगा। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स के बाद सम मोर मैट्रिसेस आर देयर, आते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिसेस, कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या है? देखिए, कंपेरेबल मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी अगर है, यानी कंपेरेबल मैट्रिसेस लिखा है, मैट्रिक्स नहीं लिखा है। तो कंपेरेबल मैट्रिसेस मतलब दो मैट्रिसेस को कंपेरेबल मैट्रिसेस बोला जाएगा जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। यानी टू मैट्रिसेस A and B are said to be comparable matrices if
their order are same. ठीक है, यानी उसके ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. जब ऑर्डर सेम हो गया तो मैट्रिक्स इज कॉल्ड, वो मैट्रिक्स क्या लाएगा, कंपेरेबल. जैसे एक मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू ले लिए ए आई जे एम बाई एन ले लिए, ठीक है. और बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर एम बाई एन है, तो ऑर्डर सेम हो गया, एलिमेंट से मतलब नहीं है. यानी मैट्रिक्स ए फिर से ले रहे हैं, इसमें 2 3 1 4 है, 2x2 मैट्रिक्स हो गया. ऐसा नहीं है स्क्वायर ही लेना है, कुछ भी ले सकते हैं. बी एक मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये भी 2x2 है, तो ये दोनों कंपेरेबल मैट्रिसेस कहलाएगा. कंपेरेबल मीन्स ऑर्डर्स आर सेम. जैसे पी एक मैट्रिक्स है 2 1 3 0 5 2, इसका 2x3 ऑर्डर हो गया. क्यू एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ये 2x3. तो ऑर्डर्स पे ध्यान देना. इफ ऑर्डर्स आर सेम देन द मैट्रिक्स इज कंपेरेबल. क्लियर. इसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स क्या है, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal. यानी दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स बोला जाएगा. क्लियर है. दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोला जाएगा जब वो कंपेरेबल हो जाए. तो कंपेरेबल बोलने का मतलब देयर ऑर्डर्स आर सेम and their corresponding elements is also same. Elements as well as comparable, as well as comparable means orders same हो और elements भी same हो जाए, then the matrices are called equal matrices. यानी two matrices A and B are said to be equal if they have same order and their corresponding elements. Their corresponding elements are same. Corresponding elements मतलब कि पहले तो ऑर्डर सेम हो गया, ए आई जे है तो ये भी ए आई जे ही होना चाहिए. तो यानी दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो गया, ऑर्डर भी सेम हो गया. जैसे 2 3 1 4, ये भी 2 2 3 1 4, यानी पहले कंपेरेबल है मतलब ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, देन इट इज इक्वल. जैसे ये 2 1 3 0 5 2, तो ये क्या हो गया, कंपेरेबल मैट्रिसेस हो गया. तो जब कंपेरेबल हुआ, ऑर्डर सेम देखेंगे, कंपेरेबल हुआ और एलिमेंट भी सेम हुआ, देन इट इज व्हाट, इक्वल मैट्रिसेस. ठीक है. तो द टाइप्स रिगार्डिंग तुम्हारा इक्वल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस देखते हैं हम इक्वल मैट्रिसेस पे. जैसे दे दिया कि 2 3 x 5 इक्वल टू 2 5 -1 5. ठीक है. इधर भी 2/2 है, इधर भी 2/2 है. ये ऐसे क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो अब दोनों इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा. तो ये y किसके इक्वल हो रहा है, 5 के इक्वल. तो y इक्वल टू 5, x के इक्वल क्या हो रहा है, -1. तो x का वैल्यू क्या आएगा, -1. तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है. कभी कभी ये y नहीं लिखकर x प्लस वाई इक्वेशन का फॉर्म रहेगा, x की जगह नहीं x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा. तो फिर उससे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे. बट इक्वल होने का मतलब उसमें भी 4 एलिमेंट, इधर भी 4 एलिमेंट, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए. ठीक है. और इक्वल मैट्रिसेस होने का मतलब है कि उसके एलिमेंट्स भी सेम है एज वेल एज ऑर्डर भी सेम है. क्लियर.
जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वाई 5 3 और 2, ठीक है, इक्वल टू, इसको देख लिया 9x 2 और इसको देखते हैं 4। अब बोला कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं तो ये तो 3 आएगा, ये तो सेम नहीं होगा फिर। अब बोला कोई फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, तो x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो x प्लस y का वैल्यू क्या है 9, x का वैल्यू क्या है जी 5। अब जैसे यहाँ 5 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 4। एक मार्क्स 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल types, what is matrix, what is matrix, type of matrix, how to describe a matrix, everything I explained, मैं सारा चीज explain कर दिया आपको। इसके बाद और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो ऑपरेशंस पे बेस्ड होगा। ऑपरेशंस मतलब जैसे अर्थमेटिक्स में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसी तरह से मैट्रिसेस में भी ऑपरेशंस होते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।